था। ओके जी। Test of the independence includes that they should have lack of conflict of interest. They should minimize the conflict of interest between the management and the shareholders of the company. Their appointer is different from the managers. Managers are basically appointed by the board of directors, whereas the independent non-executive directors are appointed by the shareholders. So their appointer is basically different from the managers. Their procedures leaving little room for the dominance by a strong manager. Obviously, the independent non-executive directors are not influenced by the management, so they are the ones who can freely or independently work for the business organization. They are applied to the NEDs. It means that no direct loyalties or the influence, because the executive directors are the employees of the business organization. They can have loyalties to the majority shareholders or to a specific group, but as far as the non-executive directors are concerned, or the independent non-executive directors are concerned, they do not have the loyalty or influence of the specific group. And even the non-executive directors can be representative directors. They can be influenced by a specific shareholder or stakeholder. Yet the independent non-executive directors are not influenced by any specific group and undermined by familiarity. But sometimes it happens that when they are more familiar, they get familiar with the other stakeholders of the business organization or the management of the business organization. Sometime their independence gets at stake, जो है ना. So that's why it is generally considered कि जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी कंपनी के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल कोई रिसेंटली रिटायर्ड जो एम्प्लॉय है उसको आप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नहीं ले सकते. रीजन बीइंग कि अगर वो आपके एम्प्लॉय ही था, आप डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नाउ इज नो मोर विद योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट ही हैज फेमिलराइजेशन विद द पीपल. इसी तरह जो क्रॉस डायरेक्टरशिप है कि एक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है ना वो सर्व कर रहे हैं, तो इस फेमिलराइजेशन की वजह से भी जो है ना उनकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो क्या हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकती है. तो द मोर दे आर अनफेमिलियर टू द पीपल, the more they would be independent or they would be free to express their opinion. Then preserving the independence of INADs, they should not be related to the directors or major shareholders or the related organization जो है ना उसमें, ठीक है. They should not be related to directors or the major shareholders. वो already मैं discuss कर चुका हूँ. Relation का मतलब ये है कि blood relative नहीं होना चाहिए. Means father, son, brother या spouse जो है ना, इनमें से किसी को आप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर के ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो उनकी होगी नहीं. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑनर्स. इन द सेम वे दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल जो है ना, जो आपके रिसेंटली रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को ऑन बोर्ड कर लेते हैं, तो दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे रिमेन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी. या आपका कोई मेजर जो सप्लायर है उसका किसी पर्सन को आप जो है ना ऑन बोर्ड कर लेते हैं, तो इंडिपेंडेंस कैसे होगी? दे आर डायरेक्टली लिंक्ड, देयर ऑपरेशंस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो शुड हैव नो मटेरियल इंटरेस्ट इन द कंपनी एक्सेप्ट हिज फिक्स रेम्यूनरेशन. मींस कि जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी किस्म की जो है ना बिजनेस के साथ जो है ना वो और एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए. हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है कि law does not restrict the companies to pay salary to the independent non-executive director. They can be paid salaries. बल्कि बेस्ट के अंदर तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एज अ प्रोफेशन जो है ना परफॉर्म करते हैं. जैसे आपके कंसल्टेंट्स होते हैं ना, तो कंसल्टेंट क्या करते हैं जो है ना कि वो एज एन इंडिपेंडेंट एज अ प्रोफेशन जो है ना कंसल्टेंसी को जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं. इन द सेम वे ये जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो वेस्ट के अंदर तो ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ क्या करते हैं, एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना वो एड कर रहे होते हैं, तो बाय प्रोफेशन दे आर डूइंग दिस. पाकिस्तान के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, और जनरली ये समझा जाता है कि सैलरी पे करके उनकी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज कर लिया गया. हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है. लॉ ये परमिट करता है कि आप उनको सैलरी पे कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो वो कंसल्टेंट आप उस प्रोजेक्ट बेस भी कर सकते हैं जी, कि पर मंथ आपको जो है ना इतना पे किया जाएगा, या उस पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना कंसल्टेंसी की फी जो है ना आप उसके साथ करके डिसाइड और उसकी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे ऑडिटर्स को करते हैं. तो दोनों पर्सपेक्टिव जो है ना वो है, लेकिन जनरली पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट की जाती है वो उनको एक फिक्स रिम्यूनरेशन दी जाती है फॉर द मीटिंग्स दैट दे आर अटेंडिंग, फॉर द बोर्ड मीटिंग्स दैट दे आर अटेंडिंग.
इट शुड नॉट बी इमीडिएट पास एम्प्लॉय और पेड कंसल्टेंट, ना तो कोई कंसल्टेंट होना चाहिए जिसको आप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे लें, और ना ही इमीडिएट पास एम्प्लॉय। इमीडिएट पास एम्प्लॉय जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि लेस देन 2 years आर जनरली कंसिडर्ड एज इमीडिएट पास। तो जिसके 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ही और शी कैन बी टेकन ऑन बोर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन जो लेस देन 2 years में जो रिटायर हुए हैं उनको नहीं आपने लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंपनी शुड बी विलिंग टू लेट एन इंडिपेंडेंट बी इंडिपेंडेंट। ये जो बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इंडिपेंडेंस तो तब इंश्योर होगी ना कि जब कंपनी खुद से चाहेगी कि बंदा जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो। और ये एक बहुत बड़ा जो है ना कंसर्न है, स्पेशली स्टेट ओन्ड कंपनीज के अंदर या ऐसी कंपनीज में जहां पे फैमिली जो है ना वो डोमिनेट करती है। तो वहां पे वो किसी को इंडिपेंडेंट ला के और अपने ही डिसीजंस के अगेंस्ट जो है ना बोलने या डिसीजंस करने की कैसे इजाजत दे सकते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट जो है ना वो चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड टू preserve the independence of the non-executive director. Then how many INEDs should be there? The Code of Corporate Governance of SCCP, the Code of Corporate Governance of Pakistan says that there should be at least 1/3. Initially जो Code of Corporate Governance था 2002 का, उसमें ये था कि preferably there should be one independent non-executive director. Preferably there should be one independent non-executive director. Later on in the revised Code of Corporate Governance of 2012, it was increased to 1/3. Okay, there should be at least 1/3 of the people who should be independent non-executive director. Whereas Cadbury Code of Corporate Governance of UK, ये triple CG जो है, this is Cadbury Code of Corporate Governance of UK says that 50% of the directors should be non-executive director, and that most of the non-executive directors should be independent non-executive director. It means कि 50% जो है वो आपके एग्जेक्टिव होने चाहिए और 50% जो है वो नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जबकि जो ऑथर ऑफ बुक हैं डॉक्टर सफदर भट्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, he says that according to me जो ज्यादा preferable structure है वो क्या है कि there should not be more than 1/3 of the executive director, और at least क्या है 2/3 जो है ना नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए। और उस 2/3 में से भी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। तो इट मींस कि अगर आपके कंपनी के जो है ना उस स्ट्रक्चर को देखें तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि आपके वन जो 1/3 है वो आपके एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो 1/3 आपके हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएंगे, और रिमेनिंग जो 1/3 हैं ये आपके पास इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो इन दोनों का जो सम है ये कितना बन जाता है 2/3। तो इसका मतलब है 2/3 जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 1/3 सिर्फ क्या होने चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसका मतलब है टोटल अगर 9 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो 9 में से 3 जो हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और 3 इंडिपेंडेंट होंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं 6 होंगे आउट ऑफ 9। तो ऑब्वियसली इफ दे आर लार्ज इन नंबर, इफ दे आर ग्रेटर इन नंबर, तो दे कैन हैव एन अनबायस्ड ओपिनियन ऑन द बोर्ड, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा, तो जिसमें बोर्ड की जो इफेक्टिवनेस है उसको ज्यादा बेहतर जो है ना वो इंश्योर किया जा सकता है। बट एज फार एज द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न, उनके पर्सपेक्टिव में ये है कि इट कुड बी लाइक दिस दैट 2/3 शुड बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर and 1/3 should be the non-executive or the independent director जो ना। अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अगर 2/3 अगेन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस फिर जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। बट एटलीस्ट having some of the non-executive directors or independent directors on the board, is yet more appropriate as compared to having no one on the board as independent or non-executive director. This thing is clear, ji? Yes, sir. ओके जी। अब वो जो ये चीज भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, द सिचुएशन इन पाकिस्तान, देयर आर वर्चुअली नो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन पाकिस्तानी कंपनीज। ऑलमोस्ट ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, नन इज एवर इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ा मसला है कि जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो मसला सबसे बड़ा ये है, इंडिपेंडेंट तो डायरेक्टर ही नहीं मिलता,
ठीक है, और जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो जनरली किसी ना किसी मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर आपके होते हैं उन्हीं के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। Another issue is no remuneration is paid to the non-executive directors. Hence, professionals are not keen to serve as independent non-executive director. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई पेमेंट नहीं हो रही, तो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कौन देगा जिसका जो किसी के साथ कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक और बड़ा इशू ये है कि जी कि जब रिम्यूनरेशन नहीं पे की जाएगी तो अच्छे जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो ऑप्ट ही नहीं करते कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे हैं। दे प्रेफर टू वर्क एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द कंपनीज वेयर दे आर handsomely paid. Then paying good remuneration can get good INDs who can be independent just as auditors and judges who are paid but retain independence. अब जो सबसे इसमें कंट्रोवर्शियल इशू है वो ये है कि अगर इनको ज्यादा पे करेंगे तो फिर इनकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब आपने ऑडिट करवाना होता है तो अच्छा ऑडिटर हायर करते हैं जिसको आप ज्यादा भी पे करते हैं ताकि ऑडिट के अंदर फेयरनेस आपके पास आ सके। तो जब ऑडिटर को ज्यादा पे कर सकते हैं उसकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होती, या जजेस को ज्यादा पे किया जाता है और जजेस को ज्यादा पे करने से उनकी जो है ना इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होती बल्कि ज्यादा इंटेग्रिटी जो है ना वो रह सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको भी ज्यादा पे करें, उनको ज्यादा पे करने से उनकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो इंश्योर की जा सकती है। मींस they would take interest in the board meetings, they would like to opt by choice as non executive directors। तो फिर जब अच्छे लोग आपके पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना जो डिसीजंस है वो बेहतर हो जाते हैं। इन्वेस्ट द मेन सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज द नॉमिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है तो नॉमिनेशंस भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो कि अभी ये इस तरह से किया जा रहा है कि जो आई कैप है या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहां पे ये प्रॉपरली जो है ना एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, एक लिस्ट मेंटेन की जा रही है जिसके अंदर डिफरेंट लोग जो हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं या हु आर विलिंग टू एक्ट एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनकी वो लिस्ट मेंटेन है। तो उसमें से कंपनीज क्या कर सकती हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो है ना वो टेकअप कर सकती हैं। Okay, Ji, till now, if you are having any query or question, if you want to ask something, please feel free to ask. सर सर एक एग्जीक्यूटिव बताइए सर। डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं जी और जो थिंक टैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो उनमें कुछ मुमासलत है। सॉरी, आपकी आपकी जो है ना वो सिग्नल इशू की वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। सर जी